तो आप देख पा रहे हैं 18वीं लोकसभा की पहले सत्र पहली कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए के सभी घटक दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा नितिन गडकरी, ये सभी लोग आज पहले सत्र में उपस्थित हैं। पहले सत्र की आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि महताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के तमाम नवनिर्वाचित सांसद, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आज पहले सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज लोकसभा के पहले सत्र में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरुआत। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, we are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons. Sri Suresh Kodikonal,
Sri Talikotai Raju Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुदीप बंदोपाध्याय। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री मनोहर लाल।
मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री H.D. कुमारस्वामी। ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। श्री पीयूष गोयल। तो आप देख पा रहे थे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कार्रवाई, जिसमें 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ उनके कैबिनेट मंत्रालय के कई सदस्यों ने शपथ ली। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली में गंगा घाटों पर शव दफनाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला डलमऊ गंगा घाट से सामने आया है, जहां लगातार शव दफनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा घाट के किनारे रेत में सैकड़ों शव दफनाए गए हैं। बता दें कि शवों को दफनाने पर रोक के बावजूद भी गंगा घाट पर शवों को दफनाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण गंगा स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। तो मामले में आंख मूंद कर बैठे हैं जिम्मेदार, गंगा स्वच्छता अभियान को लगा रहे हैं पलीता। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। शुरुआती जांच में रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसके बाद बात करेंगे कानपुर की। नक्सली हमले में सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र शहीद। महाराजपुर निवासी थे सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र।
छत्तीसगढ़ बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हुआ था आईईडी ब्लास्ट। कोबरा बटालियन में शामिल थे शैलेंद्र के साथ एक अन्य जवान भी शहीद। महाराजपुर निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद। शैलेंद्र के साथ एक अन्य जवान भी शहीद। कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।